The question is Rudolf and the ticket. And the question Rudolf is going to visit Bernard and he has decided to take the metro to get to him. The ticket can be purchased from a machine that accepts exactly two coins, and the sum of which should not exceed k. And Rudolf has two pockets, a left pocket as well as a right pocket. And the left pocket has the denomination b1, b2 to bn. The right pocket contains the coins with denomination c1, c2 up to cm. And he wants to choose exactly two coins, one from left and one from right. But the sum of those coins should not exceed k. And he wants to know total number of ways to choose such indices such that their coin denomination should not exceed k. So basically इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को क्या करना है, इफ एक एरे है एंड दो एरे का निकालना है तो हम लोग सारे इंडेक्सेस को जस्ट सम करके चेक कर सकते हैं बिकॉज वी कैन see that the index for n and m is very less. Like constraints is up to 100. So m square is an acceptable solution. तो हम लोग क्या करेंगे, for every b we will check for every c. Like for every b सारी c को चेक करो जिसका sum like bi plus ci. If it is less than equals to k, then you got your one of your answer. So increment your answer. So let me show the whole and it will be more clear. So what I've done in the code is first NMK, just take your input. N is the number of coins from the left pocket. M is the number of coins from the right pocket. K, their sum should not exceed that K value. Now we have taken this input for B and C array. Now for every element that is present in B, we will check for every element that is present in C. If their sum is less than equals to K, then this is one of your possible answers. The element is Bi and the E is Ci. If it is less than equals to K, this is one of your valid answers. So increment your answer simply and then just print your answer. So this is just a brute force one. I hope it's clear. Let's move to the second question. The second one is Rudolf and 1 to 1. In the question, basically you are represented with an array of n integers and the elements are numbered from 1 to n. And in one operation, you can choose any index I and you can perform this operation that you are decrementing the element present at the ith index to the element present at the I minus 1th index by 1 and the element present at I plus 1 index by 1 also. So you are decrementing these three values and your I should be greater than equals to 2 and less than equals to n minus 1 if this is a 1-based indexing. And Rudolf can apply any number of times this operation on any index, like any index can be repeated any number of times. And you have to check that can you make all the elements of the array 0 or not. So let me make it more clear. Basically, you will be given with an array, its length n होगा, and you can choose any index I और उसके जो फ्रंट में एलिमेंट है उसमें -1 परफॉर्म कर सकते हो, नेक्स्ट एलिमेंट में -1 और जो करंट एलिमेंट है -2. सो देखो हम लोग जो इंडेक्स 1 से n-1 तक ही चूज कर सकते. तो हम लोग को चेक करना है कि कैन यू मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे 0 और नॉट. सो जो फ्रंट में जो एलिमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वन फर्स्ट इंडेक्स. लाइक ये वाला जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उस पर डिपेंडेंट है क्योंकि इसको अगर 0 करना है मेरे को, जैसे ये x है, ये y है, ये z है, तो अगर इसको 0 करना है ना मेरे को तो y पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 1 से ही स्टार्ट कर सकते ऑपरेशन परफॉर्म करना. इसमें -2 करेंगे, इसमें -1, तो 0 इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इंडेक्स. तो इफ 0 इंडेक्स के एलिमेंट को दैट इज x को अगर मेरे को 0 करना है तो मेरे को y पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. देयर इज नो अदर वे. सो हम लोग क्या करेंगे टू मेक इट 0. चलो फर्स्ट इंडेक्स से ऑपरेशन परफॉर्म कर दें. तो लेट्स से ये 0 हो गया, ये हो गया y-2 क्योंकि इसमें तो डबल होगा क्योंकि हम लोग इसमें x ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे तो यहाँ पर 2x होगा क्योंकि इसमें -1 हो रहा था तो यहाँ पे -2 हो रहा था. तो हम लोग यहाँ पे पहले x प्रेजेंट था एंड वी आर मेकिंग इट 0. इट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग x ऑपरेशन. तो यहाँ पे x प्लस x परफॉर्म होगा. लाइक यहाँ पे -1 था तो -1 प्लस -1 परफॉर्म हो रहा था, -2 परफॉर्म हो रहा था. सो वही यहाँ पे अगर x परफॉर्म करेंगे तो ये y-2x हो जाएगा और यहाँ पे तो z था z-f हो जाएगा. नाउ अब ये वाला 0 हो गया, इसको अब रिमूव करते हैं. अब ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एलिमेंट. अगर इसको 0 करना है देयर इज नो अदर वे कि तुम किसी और एलिमेंट के हेल्प से इसको 0 कर सको.
तो तुम्हें इस एलिमेंट की हेल्प से तुम्हें जीरो करना पड़ेगा। ये वाले एलिमेंट को यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस सेट माइनस एक्स, तो तुम क्या करोगे, अब वाई माइनस टू एक्स लेट्स से ये पी है और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा क्यू माइनस टू पी एंड ये आर माइनस पी। सो फिर से ये एलिमेंट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, फिर से इसको ज़ीरो करना है। इसका जो भी वैल्यू है यहाँ पर डबल से माइनस कर दो आप, इसका वैल्यू लेट्स से कुछ भी ए है तो इसको माइनस टू ए करना पड़ेगा तुम्हें। तो जो भी वैल्यू इसका डबल यहाँ पे रिड्यूस होगा एंड सेम, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे सेम रिड्यूस होगा। एंड चेक इट, अगर ये लेस देन ज़ीरो या फिर ये लेस देन ज़ीरो है, इट मीन दिस इज नॉट अ वैलिड वन। सो उसी टाइम हम लोग नो प्रिंट कर देंगे कि नहीं हो सकता। बिकॉज इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है, हम लोग कैसे इंडेक्स चूज करते हैं, आई को चूज करेंगे तो आई माइनस वन पे परफॉर्म होगा एंड आई प्लस वन पे परफॉर्म होगा। तो तुम्हें यहाँ पे अगर इसको ज़ीरो करना है एंड आई नो दैट ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इस पर तो कुछ परफॉर्म करना ही नहीं है, मेरे को इसको इंक्लूड करना ही नहीं है, तो तुम्हें तो इससे ही इंक्लूड करना है ना। तो दिस विल बी माई आई माइनस वन, ये आई और ये आई प्लस वन, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंक्लूड दिस, तो ये आई माइनस वन ही हो सकता है, आई तो होगा नहीं क्योंकि इसमें माइनस वन होगा तो ये लेस देन ज़ीरो तो है, तो ये तो वैलिड नहीं है। तो इसी को पहले चूज करना पड़ेगा, दैट आई इंडेक्स यू हैव टू चूज, तो ये एज आई माइनस वन होगा। सो सेम जैसे इन ज़ीरो इंडेक्स को मेरे को करना है ज़ीरो, तो ये वाला एलिमेंट को चूज़ करना पड़ेगा एंड दिस विल बी रिड्यूस टू ज़ीरो। सेम फिर इसको जो भी वैल्यू आएगा फिर इसको तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा एंड मेक इट ज़ीरो एंड दिस वैल्यू गॉट रिड्यूस टू समथिंग। बट वॉट इफ दिस वैल्यू गॉट रिड्यूस टू लेस देन ज़ीरो, and less than 0, at that time only just print no and return, and at the end तुम इसको ज़ीरो कर दिए, इसको ज़ीरो कर दिए, बट लास्ट में लेट्स से 3 एलिमेंट्स है, तो तुम क्या करो, इसको ज़ीरो किए, इसका वैल्यू कुछ है ऐसे ही एक्स है, यहाँ पे z माइनस टू एक्स हुआ, यहाँ पे ये z था, ये y, तो ये y माइनस एक्स हुआ। तो अभी इन दोनों वैल्यू को, दो वैल्यूज़ के साथ तुम कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो चेक करो कि ये दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो के इक्वल है, यानी इफ ज़ीरो नहीं है इट मीन्स तुम तो सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो नहीं बना पाए, सो जस्ट प्रिंट आउट नो एंड इट डन। बट इफ तुम इसको ज़ीरो बना दिए देन जस्ट प्रिंट आउट यस। सो लास्ट में बस यही चेक करने कि लास्ट के दो एलिमेंट्स तुम्हारे ज़ीरो हो रहे हैं, यानी क्योंकि दो एलिमेंट्स के लिए तुम कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तुम तो तीन इंडेक्स पर भी चूज़ कर सकते हो। तो कोई अगर ज़ीरो बन चुका ऑलरेडी जो थर्ड इंडेक्स वाला है, तो तुम तो उसको लेस देन ज़ीरो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो इंडेक्स ही बच गए, और दो इंडेक्स चूज़ करने का कोई ऑपरेशन है ही नहीं। So let me show the code and it will be more clear. So first you have to take your integer n, that is the total number of elements, and just take each and every element that is present in an array. Now you have to perform the operation from the first index up to n minus 1, like less than n minus 1, because you are having elements from 0 to n minus 1. So if you are choosing some index, let's say if you are choosing 0, so you cannot perform the operation at the minus 1 index. Like you have to choose 3 elements. So that's why we are starting from the first index. So first index से n minus 1 तक हम लोग चल रहे हैं, that is less than n minus 1. उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ai जो कि अभी करंट एलिमेंट है उसको हम कर रहे हैं माइनस ऑफ 2 इंटू ai माइनस 1, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दैट ai माइनस 1 है वो आई पे डिपेंडेंट है, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, उसे तो मेरे को पहले अभी ज़ीरो करना है, तो हम उसे अभी ज़ीरो करना चाहते हैं। तो ज़ीरो करने के लिए उस पर जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा आई इंडेक्स में उसका डबल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो द नंबर ऑफ ऑपरेशन इज ए आई माइनस 1, सो उस पर डबल कर दिए हम लोग, और ए आई प्लस 1 पे सेम ऑपरेशन, बिकॉज जो करेंट इंडेक्स पे उसमें माइनस 2 परफॉर्म होता है, जो नेक्स्ट इंडेक्स पे उसमें माइनस 1, और जो प्रीवियस पे उस पर भी माइनस 1, तो प्रीवियस वाला जीरो हो जाएगा। इफ ए आई माइनस 1 माइनस इक्वल्स टू ए आई माइनस 1 करेगा तो ये तो जीरो ही होगा, सो हम लोग जीरो लेंगे इसमें। उसके इफ ये करंट इंडेक्स या फिर जो नेक्स्ट इंडेक्स में जो हम लोग माइनस परफॉर्म किए, ये दोनों में से कोई भी एलिमेंट इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड वन, सो मेक योर फ्लैग एज फॉल्स एंड ब्रेक आउट। एंड एट देन हम क्या चेक कर, इस फ्लैग ट्रू है इट मीन्स दैट कुड बी अ वैलिड अरेंजमेंट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे जो लास्ट एलिमेंट है एंड लास्ट प्रीवियस, बिकॉज लास्ट दो एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा ना, बिकॉज लास्ट का 3 एलिमेंट हम लोग चूज किए, तो हम लोग एक्स को जीरो किया एंड वाई एंड जेड पे सम ऑपरेशन परफॉर्म किया ऐसा वाला, तो उसके चेक करें कि लास्ट के दो एलिमेंट अगर जीरो हुए इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे हैड मेड इक्वल टू जीरो, तो यस प्रिंट करो एंड रिटर्न आउट। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लाइक ये दोनों नॉन जीरो है या फिर फ्लैग फॉल्स है,
Just print out your note. Simple. So that's it. Thank you for watching.